Hello everyone. Our today's topic is 2D transformation. Basically, 2D transformation is the process of changing size, orientation, position of an object by mathematical operation. That's called transformation. For example, in computer graphics, we change the position of an object, we scale the size of an object, we change the shape of an object, we change the size of an object, we rotate an object at certain angle. All these transformations, when we represent all these transformations in mathematical form, like if we translate an object from one location to another location, so mathematically how can we represent that? We change the position of an object from this location to that location. So the mathematical representation, the changing the position of an object, is called transformation. The mathematical representation of the changing the shape, if we change the shape of an object, like if you have a cube and you scale the cube uh, in sx, by using sx factor and sy factor, and sx and sy are both are not equal. So in that case, when sx and sy is not both are not equal, in that case you change the shape of an object. Means your cube become change in cubed form. Okay. So basically the transformation is the mathematical representation of changing the orientation, size and shape of an object. So basically we can perform the transformation in two methods: geometric transformation and coordinate transformation. So the two basic transformation is there: geometric transformation and coordinate transformation. Okay. In geometric transformation, we change the location, we change the orientation, we change the shape and size of an object with a stationary coordinate system, with relative to a stationary coordinate system. As you see in figure here, there is a coordinate system xy, the two-dimensional coordinate system xy, and the one object, as you see in figure here, this object is translated from one location to another location. So after translation, the location of the object is changed. Okay. So but we change the location of an object with respect to a given stationary coordinate system. So this type of transformation is called geometric transformation. Okay. But in coordinate transformation, we change the location of coordinate system. Suppose as in previous figure, we change the location of object from one location to another location. But when we talk about coordinate transformation, we doesn't change the location of an object, we change the location of coordinate system to change the location of an object. It means, as you see here in this figure, the initial coordinate system xy. Okay. We want to transform, we want to perform translation transformation on this object. So we change the location of coordinate system, we change the location of coordinate system xy to x dash y dash. So this x dash y dash new coordinate system represent that we change the location of an object from old location to the new location. So we perform the transformation in two methods. First one is geometric transformation and second one is coordinate transformation. Okay. There are different types of basic transformation. The basic geometric transformations are translation, scaling and rotation. Means
अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली जो अभी दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े कि ट्रांसफॉर्मेशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली हमें इस यूनिट में थॉरोली ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के ही बारे में पढ़ना है। बेसिकली मैंने आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इसलिए बता दिया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो आगे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी है वो सारी की सारी ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी है, ठीक है। तो अगर बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें कि बेसिकली ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में हर एक फील्ड में हर एक जगह यूज करते हैं, तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरह के होते हैं। पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है स्केलिंग और तीसरा रोटेशन। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं, यानी उसकी पोजीशन को जब हम चेंज करते हैं, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि यहाँ देखिए कह रहा है मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन मींस चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर दिस वी यूज द ट्रांसलेशन पैरामीटर tx एंड ty। मींस हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, यानी हम किसी ओल्ड पॉइंट से किसी न्यू पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो उससे जब हम किसी ओल्ड पॉइंट से न्यू पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो उसकी जो न्यू पोजीशन है, उसकी न्यू पोजीशन को हम ओल्ड पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के लिए हम दो पैरामीटर यूज करेंगे tx एंड ty। मींस ओल्ड पोजीशन से हम x डायरेक्शन में कितना स्टेप मूव करेंगे, दैट्स इज tx, एंड ओल्ड पोजीशन से y डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे, दैट्स ty। तो इस tx और ty पैरामीटर को उस ऑब्जेक्ट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में अगर हम ऐड कर दें, तो हम उस ऑब्जेक्ट के न्यू कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए हम दो पैरामीटर्स यूज करते हैं, एक है tx और एक है ty। मींस ट्रांसलेशन पैरामीटर इन x डायरेक्शन एंड ट्रांसलेशन पैरामीटर इन y डायरेक्शन। सेकंड जो हमारा ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो है स्केलिंग। स्केलिंग मींस एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम ऑब्जेक्ट के साइज को या उसके शेप को चेंज कर दें, उसकी साइज को बढ़ा दें, साइज को घटा दें, या उसके शेप को हम चेंज कर दें, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को हम बोलते हैं स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखिए कह रहा है स्केलिंग मींस रीसाइजिंग द ऑब्जेक्ट आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। There are two scaling parameters, sx and sy. Sx and sy means you change the shape of an object in x direction, means you just double the size of an object in x direction, and you just triple the size of in y direction. So sx and sy defined the scaling parameter in x direction and y direction. तो sx और xy को यूज करके हम ये डिफाइन करते हैं कि x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की साइज को कितना बढ़ाना है या घटाना है, और y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की साइज को कितना बढ़ाना है घटाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर sx और sy अगर हम इक्वल रखते हैं, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की साइज या तो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन उसका शेप जो है चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एक स्क्वायर लें और इस स्क्वायर की x डायरेक्शन में साइज डबल कर दे और y डायरेक्शन में भी साइज डबल कर दें, तो आफ्टर स्केलिंग उस स्क्वायर की साइज डबल हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा स्क्वायर ही। लेकिन अगर आप x डायरेक्शन में उसकी साइज डबल करते हैं और y डायरेक्शन में उसकी साइज हाफ करते हैं, तो आफ्टर स्केलिंग उसकी साइज x डायरेक्शन में तो बढ़ी और y डायरेक्शन में क्या होगी, घट गई। तो आफ्टर स्केलिंग उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, वो स्क्वायर से वो क्यूब से स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। वो आपका जो ऑब्जेक्ट पहले क्यूब के फॉर्म में था, वो क्यूब से स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्केलिंग के थ्रू हम ऑब्जेक्ट के साइज को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, साथ ही साथ उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो रोटेशन। रोटेशन में कह रहा है इन रोटेशन वी नीड एन एंगल थीटा टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। दिस एंगल में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी स्पेसिफिक एंगल को रोटेट करें, तो उस रोटेशन से उस ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है,
उस रोटेशन से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो आफ्टर रोटेशन उस ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन क्या है, ठीक है, उसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, जिस मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। अब ये जो तीन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन, बेसिकली इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और कैसे इसको हम यूज करेंगे, अब उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो सपोज करिए आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में tx स्टेप मूव करते हैं और वाई डायरेक्शन में ty स्टेप मूव करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के ओल्ड कोऑर्डिनेट x, y थे, तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x dash equal to x plus tx and y dash equal to y plus ty, where x and y is old coordinate of that object and tx is translation parameter in x direction and ty is translation parameter in y direction। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारा जो पॉइंट था P, ये ट्रांसलेशन से पहले का पॉइंट था, और आफ्टर ट्रांसलेशन जो पॉइंट है वो P डैश है, जिसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश हैं। तो हमारे पास गिवन है x y, इस x y को यूज करके x डैश y डैश फाइंड करना है, और ट्रांसलेशन पैरामीटर गिवन है tx और ty। तो नया न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे x डैश इक्वल टू x प्लस tx एंड y डैश इक्वल टू y प्लस ty। ठीक है, तो इसी को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी जो एक्सप्रेशन है x डैश इक्वल टू x प्लस tx एंड y डैश इक्वल टू y प्लस ty, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। ये कॉलम वेक्टर, देखिए जो रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और अपने इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे वो कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस एक्सप्रेशन को x डैश इक्वल टू x प्लस tx एंड y डैश इक्वल टू y प्लस ty को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया, x डैश y डैश इक्वल टू x y प्लस tx ty, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को, यानी xy मैट्रिक्स को और tx ty मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो x डैश और y डैश मिल जाएगा, जो कि कुछ इस फॉर्म में होगा। यानी हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हमने कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इस फिगर में अगर आप देखिए ट्रांसलेशन की बात कर रहा है, ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने एक्स डायरेक्शन, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में 5.5 स्टेप मूव किया है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में 3.75 स्टेप मूव किया है। तो देखिए इस ट्रायंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 9 पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो अब आपका x इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका जो टॉप, इस ट्रायंगल का जो टॉप पॉइंट है जो कि 5 पॉइंट समथिंग लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो आफ्टर ट्रांसलेशन वो 9 पॉइंट समथिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने इस ट्रायंगल के x और y, इस ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट में, तीनों पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट में हमने tx इक्वल टू -5.5 ऐड कर दिया और ty इक्वल टू 3.75 ऐड कर दिया, और ऐड करने से जो तीनों पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट आए, उस कोऑर्डिनेट को यूज करके जो हमने ट्रायंगल प्लॉट किया, देखिए उस ट्रायंगल की लोकेशन चेंज होगी। पहले ट्रायंगल यहाँ था इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वो ट्रायंगल इस पोजीशन पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर चेंज करते हैं तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब अगर स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग मैंने आपको बताया कि स्केलिंग में हम किसी ऑब्जेक्ट की साइज को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कर सकते हैं, एज वेल एज उसके शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। और इस स्केलिंग को परफॉर्म करने के लिए, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए हम दो पैरामीटर यूज करते हैं, दो फैक्टर यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं sx एंड sy। अब बेसिकली sx और sy को यूज करके कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए अगर हम हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन है और उस ऑब्जेक्ट की साइज को अगर हमें स्केल करना है, तो जो उसका x डायरेक्शन में स्केलिंग फैक्टर होगा और y डायरेक्शन में जो स्केलिंग फैक्टर होगा, उस स्केलिंग फैक्टर को उस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर स्केलिंग उस ऑब्जेक्ट के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा x डैश इक्वल टू x इंटू sx एंड y डैश इक्वल टू y इंटू sy। तो अगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, जो कि स्केलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें
तो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैंने दोनों रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है आपको, कॉलम वेक्टर रो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखा है, कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। लेकिन हमें अपने ओवरऑल इस लेक्चर नोट्स में सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिप्रेजेंटेशन फॉलो करना है जो कि कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो इस कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखिए हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जो कि x डैश इक्वल टू x इंटू एस एक्स एंड y डैश इक्वल टू y इंटू एस वाई को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को यानी इस स्केलिंग मैट्रिक्स को और इस कोऑर्डिनेट की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को बस मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझने वाली चीज ये है, यहाँ कह रहा है कि इफ एस एक्स एंड एस वाई आर टू स्केलिंग पैरामीटर, if sx and sy in between 0 and 1 point is closer to origin, size decreases। मतलब आप sx और sy की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा छोटी होती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट साइज बढ़ेगी नहीं, ऑब्जेक्ट साइज क्या होगी, छोटी होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन अगर sx और sy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो sx और sy पैरामीटर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो कोई भी वैल्यू अगर 1 से छोटी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन सी बात है वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो और अगर एस एक्स और एस वाई की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन शेप। लेकिन अगर एस एक्स एंड एस वाई आर नॉट इक्वल तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए एस एक्स, यहाँ देखिए फिगर में जो ट्रायंगल दिखाया गया है, इस ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस कोऑर्डिनेट से बनने वाले ट्रायंगल की साइज को हमें क्या करना है, स्केल करना है। जो स्केलिंग पैरामीटर है एस एक्स और एस वाई दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है, एस एक्स इक्वल टू एस वाई इक्वल टू 2, यानी ट्रायंगल को हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इक्वली क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं, उसकी साइज को दूना कर रहे हैं, जस्ट डबल कर रहे हैं। तो देखिए ट्रायंगल का जो शेप है वो अभी भी ट्रायंगल ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी साइज क्या होगी, जस्ट डबल होगी। क्यों साइज इसलिए डबल होगी क्योंकि स्केलिंग जो पैरामीटर वो क्या है, 2 के मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, और यहाँ पे एस एक्स इक्वल टू एस वाई है, इसलिए ऑब्जेक्ट का शेप जो है चेंज नहीं हो रहा, लेकिन साइज क्या है, जस्ट डबल हो जा रही है। ऐसी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें जो कि रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं और ये गिवन होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर रोटेट करना है। तो बेसिकली हमें इस रोटेशन के रिगार्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इवेलुएट करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मैं इस फिगर को पेंट पे लेके चलता हूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सर्टेन एंगल फाई गिवन है, ठीक है, और ये सर्टेन एंगल फाई ऑब्जेक्ट की ओल्ड लोकेशन के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करके इस पी डैश पॉइंट पे लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है, और आफ्टर रोटेशन हम ऑब्जेक्ट को जब थीटा डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, दिस एंगल थीटा डिग्री पे जब रोटेट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा न्यू लोकेशन पी डैश पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जो हमने थीटा पर रोटेट किया तो एक्स एक्सिस से जो ओवरऑल एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा प्लस फाई, ठीक है। और यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा पी डैश है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पी डैश इस ओरिजिन से, ऑब्जेक्ट पी डैश इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट पी डैश इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है इस रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हमें एक्स वाई और थीटा का ही टर्म यूज करना है, ना तो हमें फाई यूज करना है ना तो आर यूज करना है। लेकिन अभी हम डेरिवेशन के लिए फाई को भी यूज करेंगे, आर को भी यूज करेंगे, इन सब को यूज करते हुए एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसको हम सिंप्लीफाई करके एक्स वाई और थीटा के फॉर्म में लेके आ सके। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो फाई एंगल है यानी दिस एंगल फाई, इस फाई को अगर मैं एक्स और आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, cos फाई इक्वल टू एक्स बाई आर, ठीक है, सो एक्स इक्वल टू आर cos फाई, और साइन फाई इक्वल टू वाई बाई आर, सो वाई इक्वल टू आर साइन फाई। मींस जो ऑब्जेक्ट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, उस एक्स वाई को हमने आर और फाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स इक्वल टू आर cos फाई और वाई इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है। अब
यहाँ देखिए, अब जब ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर लेते हैं थीटा डिग्री पे, तो आफ्टर रोटेशन जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो ओवरऑल एंगल क्या होगा, थीटा प्लस फाइव। तो अब अगर मैं cos थीटा प्लस फाइव को यहाँ अगर आप देखिए cos थीटा प्लस फाइव इक्वल टू हो जाएगा x डैश अपॉन r, so x dash equal to r cos 5 plus theta and sin 5 plus theta equal to y dash upon r, so y dash equal to r sin r sin 5 plus theta. So we can elaborate cos 5 plus theta in the form of cos a plus b and sin 5 plus theta in the form of sin a plus b. Okay, so cos a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b and sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. तो अगर इस एक्सप्रेशन में जो भी हमने cos a प्लस बी और sin a प्लस बी के लिए यहाँ लिखा, इस एक्सप्रेशन में अगर a और b को थीटा और फाइव से रिप्लेस कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, r cos फाइव cos थीटा माइनस r sin फाइव sin थीटा एंड r sin फाइव cos थीटा एंड r cos फाइव sin थीटा। और हमने भी ऊपर देखा कि x इक्वल टू क्या है, r cos फाइव और y इक्वल टू क्या है, r sin फाइव। तो r cos फाइव और r sin फाइव को x और y से रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x cos फाइव माइनस y sin फाइव एंड y डैश क्या हो जाएगा, y cos थीटा प्लस x sin सॉरी x डैश इक्वल टू हो जाएगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड y डैश हो जाएगा हमारा y cos थीटा प्लस x sin थीटा। तो हमने x डैश और y डैश जो कि इस ऑब्जेक्ट के न्यू कोऑर्डिनेट्स है आफ्टर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हमने x y और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें करना क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, x डैश y डैश इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इनटू xy। अब देखिए, ये जो हमने रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ये स्पेशली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे तो यहाँ आप जो साइन थीटा देख रहे हैं, साइन थीटा के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जहाँ माइनस साइन थीटा देख रहे हो वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा और जहाँ प्लस साइन थीटा देख रहे हो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखिए, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए अब हम बात करते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन में वही सारा डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे और डेरिवेशन परफॉर्म करने के एंड स्टेप पे जब पहुंचेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन की, उस मैट्रिक्स मिलेगी। सिर्फ अंतर इतना है कि साइन थीटा का जो साइन है वो चेंज हो गया है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में इस वाले साइन पे नेगेटिव साइन था और क्लॉकवाइज में इस वाले साइन थीटा पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। थैंक यू।